Question number 12 in the topic of impulse momentum principle. This question says that a moment and a force are simultaneously acting on a pivoted mass. Pivoted mass ka matlab, there is a rigid rod that is connected to this pivot, and this pivot allows the rod to rotate about itself, and the end of the rod contains a mass, a concentrated mass ball of 150 kilogram, and this mass is capable of rotating all around this pivot. A torque or a moment, you can call it anything, of value 30 t square Newton meter is applied on it. So only this torque is enough to start the rotation of the mass and the rod. But apart from this moment, a tangential force acting at the center of the mass is also available. Now, as can be seen from the expression of this force and moment, both these are dependent on time and hence they are not constant. And since they are not constant, whatever, if even if you are trying to find the work or if you are trying to find out the impulse, whatever quantity you have to find through integration. So if the force and moment are not constant, you will have to make use of integration. Anyway, under the influence of this tangential force and the simultaneously applied torque or moment, this system will start rotating. And as we can see, the direction of the torque is anticlockwise, and the push of the force is also going to make the motion in the anticlockwise direction. So the overall motion of the system or the mass around this pivot is going to be in the anticlockwise direction. Now the question is, find the tangential velocity of mass after 5 seconds if it started from rest initially. So it starts from rest initially, and if you look at the profile of the circular motion that is going to happen, the tangential velocity will be like this. This is the tangential velocity that we have to find after 5 seconds. Okay, so once again, in your RTO examination, it is very rare that you will be getting a statement that solve this particular using impulse momentum principle or solve this question using some other principle. You have to read the question and decide for yourself what principle has to be applied. Now, how do we know? See, when we are dealing with the topic of impulse and momentum, so by default, we are obviously going to take that principle to solve any question that comes up. But in the examination, all the questions will be mixed up, especially since the new format of your exam has started. So you will never know which question is occurring from which unit or which part of your syllabus. So how do we get the hint that this question has to be solved or can be solved using impulse momentum principle? The hint is obtained when any quantity, velocity or momentum or any quantity is required after a certain duration of time. So whenever you have a time element involved in your question, and apparently it seems to be a question of kinetics, जिसमें कि mass है, velocity है, momentum की बात आ रही है, force लग रहा है. So if the question is from the topic of kinetics, which will be apparent from the look of the question itself, and in the kinetics question, if there is a mention of some time element, then you get a very strong hint or a very good notion that this question can be attempted with impulse momentum principle. Why? Because impulse is nothing but force into time. This is your impulse. For linear motion and for rotary motion, impulse or angular impulse is movement into time. That's it. So let us attempt this question using the impulse momentum principle. The thing that is given here is the velocity of mass after 5 seconds is required. So let us say that one moment is there
which will create an angular impulse. There is a tangential force, but as soon as this force starts acting on this 150 kg, is this 150 kg going to move along a straight line, or is it still going to rotate along this circular profile? Somebody please tell me. Forget about this moment. Just tell me, if this force is applied tangentially, is the 150 kilogram mass going to move forward along a straight line, or is it still going to rotate about the circular profile? Sir, rotate about the circular profile. It will still execute the circular profile. So that means even though a linear force is present, it is contributing to some sort of torque only. So what we can do is we can find out what is the second torque. See, you can say that the first torque is a direct torque. So we will name it as M1. It is equal to 30 t square. ये तो सीधा सीधा torque है. Now, if a tangential force is acting at a distance of 4 meters, perpendicular distance of 4 meters on the mass, what is the moment or torque generated by this force? Please give me the answer. This is the force, 15t. This is the distance, 4 meters, perpendicular on the pivot. So 15t into 4. 60T. 60T. I say it is 60t. Yes, sir, 60t. So we have now two moments acting with us. The first moment is 30 t square. It is in the anti-clockwise direction. The second moment is 60 t Newton meter. Can you give me the direction of rotation for M2? Is it anti-clockwise or clockwise? Anti sir. Anti-clockwise. It is going to be anti-clockwise. इसमें आपको वही रॉकेट वाला प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा. मैंने मोमेंट्स का डायरेक्शन पता करने के लिए आपको कहा था. Consider that this distance is being represented by a thread connected from the pivot point, and imagine this force vector to be a rocket, and the tail end will be ignited, and when this rocket starts to fly away, it won't be allowed to fly along a linear direction because it is tied with a string. And you can now easily imagine in your minds that this rocket would be forced to execute a circular profile in the anti-clockwise direction. अगर ये arrow head पीछे को होता तो clockwise direction होता. ठीक है? Anyway, so now we have in our hands two moments. One moment is 30t square, another moment is 60t. And now we can apply the impulse momentum equation. If I have one moment acting on the system or the mass, then I will simply multiply it with time and say that this angular impulse is going to change the momentum of the system, and I can say that this is equal to I omega 2 minus I omega 1. क्यों? Because impulse momentum principle for rotary motion says that the summation of all angular impulses will be equal to change in angular momentum. Angular momentum is I omega. Change in angular momentum means final angular momentum minus initial angular momentum. Summation of angular impulses means if there is only one moment, then the angular impulse will be simply moment into time. If there are multiple moments like M1 and M2, then the total angular impulse will be given by M1 into T plus M2 into T. And this will be equal to I omega 2 minus I omega 1. But there is an additional problem. You can find the value of impulse directly by multiplying a moment and time only if these moments are constants. But in our case, the moment is not a constant. It is a variable quantity which changes with time. तो आपकी दो moments हैं.
और दोनों मोमेंट्स टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो अब मैं ये चाहता हूं कि मैं m1 के कारण इंपल्स निकालूं और m2 के कारण भी इंपल्स निकालूं, एंगुलर इंपल्स, और उन दोनों को ऐड करूं। दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। सो हाउ डू आई अचीव दिस व्हेन इट इज नॉट अ कांस्टेंट? If your moment is not a constant, then what you do is first you multiply your moment with a small time dt and then integrate it from 0 to t. Now this becomes the angular impulse for the first moment. Then you take the second moment, integrate it from 0 to t, m2 into dt. So if your force or moment is not a constant and is a variable depending on time, then this is the expression for finding the impulse. Instead of simply multiplying it with time, you have to integrate it with respect to time. And now the sum of these two impulses can be put equal to the change of momentum, I omega 2 minus I omega 1. Now this is what we are going to do. So let us bring in the values of m1. m1 is 30t square. So my expression for the principle of impulse momentum principle will become integral 30t square, and the second moment is 60t. (60t) is m2 into dt. What is the limit of integration? Can anybody tell me? Read 0 the to question. 0 to 5 seconds. 5 seconds is the duration of the application of moment. So our integration will be carried out from 0 to 5 seconds for both the moments. Now, let us construct the right hand side. First of all, let us find the value of I. See, what you have here is a massless rod. If the mass of the rod is not given, you can automatically assume it to be massless. It is 4 meters long, and what you have to assume is this ball of 150 kilogram is a concentrated point mass, which is concentrated at the center, because no dimensions of the ball are given. ना तो इसका spherical है, cubical है, कोई shape भी नहीं दे रखा, कुछ नहीं दे रखा है, और अगर दे भी रखा हो तो भी आपको इसको एक concentrated mass मानना है. So now the question is, you have an axis of rotation and you have a point mass of 150 kg concentrated at a distance of 4 meters. What is the moment of inertia I of this point mass? I कैसे निकालेंगे इसका, ये बताओ. Half mr square. It is simply m into r square. पॉइंट मासेस का इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट निकालना है तो वो तो सबसे सिंपल होता है. इट इज द सेकंड मोमेंट ऑफ द मास, यानी कि m into r, and here your r is 4 meters. So what is the value of I की वैल्यू कितनी है आपकी? m into r square. Your m is 150 kg and your r is 4 meters. तो I को क्या मैं 150 into 4 का स्क्वायर लिख लूं क्या? Yes, sir. ठीक है. अब देखो I तो मैंने यहां पर ले लिया. Now since I is common, can I simply write the right hand side as I into omega 2 minus omega 1? Yes, sir. So this is I multiplied by omega 2 minus omega 1. Omega 2 is the final angular velocity at the end of 5 seconds, and omega 1 is the initial angular velocity at 0 seconds. Can you shed some light on what is the value of omega 1 from here? So 0. It is 0 because the statement already gives you the value. It started from rest initially. यानी कि t is equal to 0 समय पर
इसकी वेलोसिटी कह लो चाहे एंगुलर वेलोसिटी कह लो, सब कुछ जीरो थी, ठीक है। सो ओमेगा 1 is 0 and omega 2 is the quantity that we want to find out. पहले अपन एक बार angular velocity को निकाल लें. Now this is a definite integral, this is a definite integral, this quantity is known, this is known. Can you find the value of omega 2 from this expression or not? इसको अपन को पूरा करने की जरूरत थोड़ी ना है, ये कर लोगे अपने आप. Yes, sir. ठीक है. So let us say that now we know the value of omega 2. ये अपन को पता है, इस ऊपर वाले इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल ली. बट इज इट द थिंग दैट वाज आस्क्ड ऑफ यू? ये पूछी गई थी कि आपसे फाइंड द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ मास. दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग. एंड व्हाट हैव यू कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग द इंपल्स मोमेंटम थ्योरम इन रोटेशन. इसको अप्लाई करके आपने निकाला क्या है? आपने ओमेगा 2 निकाला है. आपको पता करना है कि इसकी ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है v, ये कितनी होगी, या कह लो v2 निकालना है एट द एंड ऑफ 5 seconds. That is v2 is the velocity when time is equal to 5 seconds. कैसे निकालोगे? Sir, V2 is equal to R omega 2. Yes, it is simply r into omega. आपको किसी भी सर्कुलर मोशन में ये पता है कि एक एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन हो रहा है. इफ द एक्सिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम द सर्कुलर प्रोफाइल, तो इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, let it be v, and if the rotation is happening at omega angular velocity, then for circular motion we always have v is equal to r omega. ये चीज अपन को पता है. तो अगर आपको ओमेगा 2 पता लग गई तो v2 पता करने के लिए क्या करना है? Simply multiply it with the radius r, that is 4 meters. This is your answer. ठीक है. So please do the calculations and check if you get this answer or not. ठीक है. ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया क्या पूरा? कैसे किया है अपन ने? Did you understand this? Yes, sir. So this was impulse momentum principle in application for a problem of circular motion. Now let us, this problem is also complete. Now let us go to another problem. Now let us do this problem. इस प्रॉब्लम में भी मैं आपको सिर्फ गाइडलाइंस दूंगा. You have to solve your problem on your own. 1 minute. Determine the time required for the weights shown in figure to attain a velocity of 9.81 meter per second. मतलब एक इस तरह का एक स्लोप क्रिएट किया है. One side of the slope is 30 degree, another side of the slope is 60 degree. There is a pulley through which a rope has been taken from above, and at the right side 1800 Newton has been suspended. It is in contact with the floor, of course, and on the other side 2000 Newton is suspended. And now they are saying, although they have not stated very clearly कि इसको रेस्ट से छोड़ा गया था, लेकिन अगर आप पूरी प्रॉब्लम को एक बार पढ़ लोगे तो आप अपने आप इसको एज्यूम करना ही पड़ेगा आपको कि इनिशियली इट वाज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू थिंक अबाउट इन दिस प्रॉब्लम इज कि ये चलना चालू होगा तो ये किधर को चलेगा. जब तक ये नहीं पता होगी तब तक आपकी प्रॉपर इक्वेशंस नहीं बन सकती. And we have to find the tension in the cord also. Friction is also there. The surface is offering friction also on both the sides, and the coefficient of friction is given as 0.2 for both the planes.
एज्यूम द पुल्ली टू बी फ्रिक्शनलेस, पुल्ली पे फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, ये चीज इन्होंने दे रखी है। तो नाउ हाउ डू वी नो दैट दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड विथ इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल? ये कैसे पता लगा आपको, आप मेरे को बताओ। भाई इंपल्स मोमेंटम के डिस्कशन में ही ये प्रॉब्लम रखी है मैंने, और अपन इसको इंपल्स मोमेंटम से ही सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए तो मैं आपको बता दूं, आप इसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कर सकते हैं, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से कर सकते हैं, सिंपल काइनेटिक्स की न्यूटन्स लॉ लगा के भी कर सकते हैं, काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स का मिक्सचर करके, और चाहो तो इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल से भी कर सकते हैं। देर आर अ लॉट ऑफ वेज थ्रू विच दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व। लेकिन अभी तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आपको ये कैसे पता लगेगा, या हाउ आर यू कॉन्फिडेंट इनफ दैट दिस कैन बी सॉल्व्ड विद इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल आल्सो? व्हाट इज द हिंट इन द क्वेश्चन दैट टेल्स यू सो? Sir, velocity and time relation. नो, ये मैंने आज के अभी के लेक्चर में ही स्टार्टिंग में बताया था, हाउ टू फाइंड वेदर अ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड विद इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल और नॉट। यू हैव टू लुक फॉर टाइम, टाइम का एलिमेंट आ जाए तो ही इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल लग सकती है, क्योंकि इंपल्स का डेफिनेशन ही फोर्स इनटू टाइम है। किसी ना किसी तरीके से उसमें टाइम का इन्वॉल्वमेंट तो लाना ही पड़ेगा। अगर इसमें कहीं भी कोई टाइम का मेंशन नहीं है तो फिर इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन लगाना मुश्किल है। हो सकता है कि प्रॉब्लम की कुछ और पैरामीटर से टाइम आप खुद निकाल लो, लेकिन जब तक टाइम की कोई स्पेसिफिक बात नहीं हो तब तक आप इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन तो निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि इंपल्स खुद ही फोर्स इनटू टाइम होती है। आगे मोमेंटम में तो मास और वेलोसिटी सब आती है, या फिर आई और ओमेगा आएगा। लेकिन फोर्स की अगर रोटेशनल मोशन आ गई तो एफ इंटू टी इक्वल टू डेल्टा एम वी की बजाय एम इंटू टी इक्वल टू डेल्टा आई ओमेगा आ जाएगा। यही है इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन। लेकिन एक चीज आप देखो, इसमें टाइम है जो कि चाहिए ही चाहिए। सो अंटिल एंड अनलेस देयर इज सम एलिमेंट ऑफ टाइम इन्वॉल्वड इन द प्रॉब्लम, यू कैन नॉट अप्लाई दिस। एंड इफ टाइम रिक्वायर्ड निकालना है या कुछ ऐसी चीज निकालनी है, देन यू नो दैट इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड। इसको याद रखना, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट आएगा उसमें कहीं कुछ बता के देने की कोई जरूरत नहीं है क्वेश्चन पेपर सेटर को कि इसको इससे करना है, इसको इससे करना है। नो, दे विल सिंपली गिव यू अ प्रॉब्लम और आपको पता होना चाहिए किससे सॉल्व करना है। ओके, एनीवे, लेट अस सी हाउ वी कैन अप्लाई इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल हियर। आपको टेंशन निकालनी है और क्या पता करना है कि इस सिस्टम को जैसा ये दिख रहा है वैसा पहले तो पकड़ के रखा था, फिर आपने उसको छोड़ दिया, फिर ये कहते हैं कि कुछ समय बाद इस, अब या तो ये इधर को चलेगा, यूं चलेगा, या फिर ये उल्टा चलेगा, यूं चलेगा। लेकिन ये जिधर को भी चले, both the masses, since they are connected with a string which is inelastic, they will be moving at the same velocity। तो जीरो वेलोसिटी से दोनों स्टार्ट होंगे और धीरे धीरे इनकी वेलोसिटी रियल टाइम में बढ़ते बढ़ते बढ़ती ही चली जाएगी जब तक ये कहीं नीचे आके टकरा ना जाए। सो दे वांट टू नो कितने समय बाद इन ब्लॉक्स की वेलोसिटी एग्जैक्टली 9.81 मीटर पर सेकंड बन जाएगी, और उस समय इसके कॉर्ड में टेंशन कितना है। दिस इज व्हाट दे वांट टू नो। ठीक है, सो लेट अस से अब अपन को तो इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल लगाना है ब्लाइंडली। इसके बारे में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करते। सबसे पहले लेकिन ये जरूरी है ये पता करना कि ये ब्लॉक्स किधर को चलेंगी, यों चलेगी या यों चलेगी। वी वांट टू नो दिस, एंड आई विल गिव यू अ वेरी इजी मेथड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन इन ऑल सच केसेस। इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो पहले आपको ये पता करना ही पड़ेगा कि किधर को चलेगा ये, और उसका तरीका ये है टू एज्यूम दैट देयर इज नो फ्रिक्शन।
तो पहले ये मानो कि फ्रिक्शन है ही नहीं, तब ये किधर को चलेगा। अब आप इसको मत देखो, अब आप इस चीज को देखो। एक सिंपल पुल्ली डाल दी, यहां पर एक वेट है, यहां पर भी एक वेट है। अगर इस पुल्ली में फ्रिक्शन नहीं है, ये 2 किलो है, ये 1 किलो है, किधर को चलेगा ये क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा? क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज घूमेगा। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, इस तरफ को जो फोर्स है वो इस तरफ को लग रही फोर्स से ज्यादा है। अब आप यहां पर भी इसी चीज को अप्लाई करो, एज्यूम दैट देयर इज नो फ्रिक्शन, ठीक है? तो मेरे को बताओ कि इस डायरेक्शन में लग रही फोर्स का वैल्यू कितना है और इस डायरेक्शन में लग रही फोर्स का वैल्यू कितना है? यू गाइस टेल मी। वेज या प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन बना रखा है, इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग जो फोर्स होती है वो हमेशा किसके बराबर होती है? वी हैव डन इट मेनी टाइम्स, mg साइन थीटा के बराबर होती है। ये तो रट लेना है, मैंने आपको कई बार कहा है, इधर भी mg साइन थीटा के बराबर होगी। तो अब आप लोगों में से कोई एक जना कैलकुलेटर उठाए, ये वाला mg तो है 2000, ये वाला mg तो है 1800, ये वाला थीटा है 60 डिग्री और ये वाला थीटा है 30 डिग्री। somebody प्लीज डू द कैलकुलेशन। अब अपन ने क्या किया, अपन ने फ्रिक्शन को बिल्कुल जीरो मान लिया है। बोला कि अगर प्लेन पे फ्रिक्शन नहीं होती तो इधर को खिंचाव होता mg साइन थीटा का और इधर को खिंचाव होता mg साइन थीटा का। यहाँ पे mg 2000 है, यहाँ पे mg 1800 है। इन दोनों mg साइन थीटा में से बड़ा वाला कौन सा है ये पता करो। प्लीज गिव मी द वैल्यूज, दोनों की वैल्यूज बता दो आप कैलकुलेट करके। सर पहले वाले की है 1000 न्यूटन। एक सेकंड, आपकी आवाज थोड़ी सी, हाँ ये कितना आया? ये वाला है 900√3 न्यूटन। दिस इज 1800 साइन 60, ठीक है ना? हाँ। और ये वाला है 2000 साइन 30, 30। ये तो हो गया 1000। हम्म। और ये कितना है? Sir, 1558.8. 155 8. पॉइंट समथिंग आएगा, है ना? Yes, sir. बड़ा कौन सा है इनमें से? Sir, ये 60 डिग्री वाला. ये वाला बड़ा है। तो अब Yes, sir. अपन को इतनी एक्सरसाइज करके एक छोटा सा कैलकुलेशन करके ये समझ में आ गया, डायरेक्शन ऑफ मोशन इज गोइंग टू बी दिस। एग्रीड और नॉट? Yes, sir. ये अब डायरेक्शन ऑफ मोशन है। एंड नाउ वंस वी नो द डायरेक्शन ऑफ मोशन, लेट अस ड्रॉ दिस फिगर। Now you go for the free body diagram, 60 degree. इधर को लग रही है mg sin 60। अब मैं m sin 60 की बजाय एक सीधे ही एक ये चीज ले लेता हूँ, 1800 है ना, mg is 1800, 1800 sin 60 is acting downwards, the normal reaction of the floor is acting upwards। ये कंपोनेंट कितना है कोई बता सकता है क्या? The weight component acting perpendicular to the plane। अगर ये 18 sin 60 है तो ये कितना होगा? 1800 cos 60. 1800 cos 60 होगा। और अब ये वेज वाली प्रॉब्लम अपन एक नहीं कई बार कर चुके हैं। सो कैन आई सिंपली से विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन दैट r इज इक्वल टू 1800 cos 60? यस सर। पीछे को लगेगी कौन सी फोर्स बताइए? अब देखो मोशन तो नीचे को है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, सो व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग बैकवर्ड्स? टेंशन एंड फ्रिक्शन। The frictional force, and frictional force is equal to mu into r।
आर की वैल्यू आपको पता है, म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.2, म्यू इज 0.2 फॉर बोथ द प्लेन्स। ठीक है, और कोई फोर्स इस पे है नहीं। नाउ और कोई फोर्स है क्या, जरा देख के बताओ, कोई मैं मिस तो नहीं कर रहा हूं? सर टेंशन। सर टेंशन ऑफ द टेंशन। थ्रेड, यस, टेंशन ऑफ द थ्रेड पीछे को लगेगी क्योंकि ये इधर को मूव कर रहा है। ठीक है, एंड नाउ सिंस R and 1800 cos 60 are aligned in the direction along which motion is not taking place, तो इनको तो हटा दो पिक्चर से। अब कुल मिलाकर के आपकी बॉडी पे ये दो तीन फोर्सेस हैं, 1800 cos 60 T and 0.2 mu into 1800, सॉरी ये वाला साइन, सही है क्या? म्यू इंटू आर, यस सर। फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अब direction of motion is this, so can I say that summation of all the forces for this body, the 1800 Newton body, in the direction of motion, अब मैं इसको पॉजिटिव डायरेक्शन मान रहा हूं, so I will say that this is 1800 sin 60 minus t minus 0.2 1800 cos 60। सही हो गया क्या? यस सर। What does impulse momentum principle say? समेशन ऑफ एफ को टाइम से मल्टीप्लाई करो, यानी कि जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही है उन सबको टाइम से मल्टीप्लाई करो, एंड दिस विल बिकम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। दिस इज इंपल्स मोमेंटम थ्योरम और प्रिंसिपल। ठीक है, अब अपने को क्या पता है इसके अंदर, समेशन ऑफ एफ तो पता लग गया, ये पूरी चीज है, तो समेशन ऑफ एफ इंटू टी का मतलब क्या होगा? I will simply write 1800 sin 60 minus t minus 0.2 1800 cos 60 multiplied by t, ये तो हो गया इंपल्स, इक्वल टू मास कितना है? इफ अ बॉडी हैज अ वेट ऑफ 1800 न्यूटन, व्हाट इज द मास? एटीन हंड्रेड बाय 9.81। यस, 1800 अपॉन g इंटू फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v2। Determine the time required for the weights to attain a velocity of 9.81 मीटर पर सेकेंड। तो ये 9.81 v1 है या v2 है? सर V2। ये v2 है, और v1 कितना है? सर 0। इट इज 0। भाई लिखा है क्या? m तो वापस से वही चीज है 1800 बटे g, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, 0 से मल्टीप्लाई होने जा रहा है। ठीक है, और वेलोसिटी जो है 9.81 क्या है, वो भी g तो है, g की वैल्यू है ना। फाइनल वेलोसिटी इज 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन न्यूमेरिकली दिस इज इक्वल टू जी, राइट? शॉर्टकट ले रहा हूं, अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप ये जी मत लिखो, आप तो सीधे सीधे 9.81 ही लिख दो साहब, तो जी भी तो 9.81 ही है, और ये इवेंचुअली कैंसिल आउट हो जाएगी, m into 0 will become 0, so this is your equation finally। ये सारी चीजें हटा दो, everything cancels out, this is the equation we get from applying impulse momentum principle on 1800 Newton body।
अब यही काम आपको 2000 न्यूटन बॉडी पे करना है. नाउ लुक एट द फिगर. दिस इज द स्लोप, एंगल इज 30 डिग्री. अब मैं बिना एक्सप्लेनेशन के इसके ऊपर फोर्सेस बना रहा हूं, आप लोग खुद ही देख लेना. टेंशन विल बी पुलिंग इट अपवर्ड्स. Along the plane, the component of weight will be 2000. बताओ कितना है? Sin 30. Sin 30. और एक कंपोनेंट, चूंकि ये ऑब्जेक्ट अब ऊपर को मूव हो रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे को लगेगी. ये कितनी होगी? म्यू इंटू आर, वेयर आर इज इक्वल टू, किसके बराबर है आर आपकी? 2000 sin 30 cos 30. 2000 cos 30 के बराबर. So now I am going to directly write the equation that I will get after applying the impulse momentum theorem on this figure. 2000 न्यूटन की बॉडी पे अगर मैं impulse momentum principle लगाऊं तो उसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो मुझे मिलेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप लोग खुद उस पे लगा करके सोच करके फिर देखना ये सही है क्या. आई एम गोइंग टू राइट T माइनस 2000 sin 30 minus 0.2 into 2000 cos 30 multiplied by the time. This is summation f multiplied by time equal to 2000. अब ये कैसे आया, ये आपको खुद इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन लगा करके देखना है. जैसा मैंने पहले लगाया था इस पे, वैसा ही इस पे लगाया है. You apply this equation and see whether you get this equation or not. And now you have got two equations with two unknowns. पहला अननोन तो स्मॉल t जो कि टाइम है, और दूसरा अननोन टेंशन t है. And I am 100% sure that you can solve these equations simultaneously and get both the answers कि कितना टाइम लगा है और टेंशन कितनी है. ये दोनों इन दो इक्वेशंस को, these are linear equations, very easy to solve. इसको सीधे सीधे ऐड भी कर दोगे तो कैपिटल टी तो वैसे ही कैंसिल हो जाती है और आपको स्मॉल टी उसमें से डायरेक्टली मिल जाएगी. और एक बार स्मॉल टी मिल जाए, you apply it into any one of these equations, you will get the value of capital T. और यही आपको पता करना था. Determine the time required, that is small t, and find the tension, that is capital T. ठीक है, समझ में आ गया कैसे किया अपन ने. ये वैसी ही पुरानी प्रॉब्लम है, ये कोई जरूरी नहीं है इंपल्स मोमेंटम से करे. इसको तो सीधे सीधे न्यूटन्स लॉ से भी कर सकते हैं अपन को वर्क एनर्जी और कंजर्वेशन पे भी नहीं जाना है. यू कैन डायरेक्टली सॉल्व इट विद न्यूटन्स लॉ, लेकिन अपन ने इसको इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल से किया. ठीक है, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? चेक द आंसर्स वेदर यू गेट दिस आंसर और नॉट. ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? बताओ भाई. Yes, sir. Yes, sir. Question number 5 you do on your own. This is done. Question number 5 आप खुद करेंगे क्योंकि ये बहुत सिंपल है. उसके जैसा क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा, हालांकि इसमें कोई ज्यादा अलग कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल इसमें ज्यादा आता है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 आपको करवा रहा हूं. और एक बार क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ जाए तो आप क्वेश्चन नंबर 5 को 100% अपने आप आराम से कर पाएंगे, 1 मिनट में कर लोगे. इट्स वन ऑफ द सिंपलेस्ट प्रॉब्लम्स दैट कैन बी पोज्ड टू यू. नाउ लेट अस रीड क्वेश्चन नंबर 6. A 800 Newton man moving horizontally with a velocity of 3 meter per second jumps off the end of a pier into a 3200 Newton boat. अब देखो ये क्या चीज है, पहले मैं इसको ड्रॉ करके दिखा देता हूं. ये हो क्या रहा है यहाँ पे? पियर का मतलब होता है इट्स लाइक अ प्लेटफॉर्म एट द एंड ऑफ विच a body of water starts. जैसे कोई समुद्र का किनारा हो
या तालाब का किनारा हो या नदी का किनारा हो, उस पे एक प्लेटफॉर्म बना दिया है, दिस इज योर पियर। इस पे एक बोट है, थोड़ी सी दूरी पे ऐसे ही बोट रखी हुई है। इस बोट का वेट कितना दिया हुआ है? 3200 न्यूटन। A man is walking towards this boat. He is currently on the pier. ठीक है, आदमी का वेट है 800 न्यूटन। The velocity of the man is given 3 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और वो कूद जाता है एट द एंड ऑफ द पियर ऑन टू द बोट, यानी बोट के ऊपर कूद रहा है वो। वेलोसिटी इज 3 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए बोट के बारे में क्या कह रखा है, फाइंड द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ बोट इफ, फर्स्ट पार्ट है इफ इट हैड नो इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि पहला केस तो यह है कि बोट यहां खड़ी है, ना आगे पियर की तरफ आ रही है ना पियर से दूर जा रही है, सिर्फ यह आदमी 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलता हुआ या भागता हुआ आया, इधर से कूदा और सीधे बोट पे जाकर के लैंड हुआ। नाउ यू हैव टू एज्यूम दैट ही इज जंपिंग लाइक दिस, ठीक है, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट मोशन में ऐसे कूद रहा है, आपको ये ऐसे इमेजिन करना पड़ेगा, और रादर ऐसे कूदा है ये इमेजिन करना पड़ेगा। हालांकि आप ये बोलोगे कि भाई ऐसे कौन कूदता है, तो इसमें अपन को ये देखना है कि एक डायरेक्शन की मोमेंटम और इम्पल्स जो भी चीजें अपन को उसी पे लगानी है, ठीक है। सो यू हैव टू बी अ लिटिल बिट अनरियलिस्टिक हियर। साधारणतः आदमी कैसे कूदेगा, आदमी इस तरह से कूदने की कोशिश करेगा, ही विल जंप लाइक दिस। तो उस केस में तो इसकी एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों वेलोसिटी आएगी, लेकिन चूंकि इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं की गई है कि वो कैसे कूद रहा है, सो यू हैव टू एज्यूम दैट द जंपिंग हैज टू बी वेरी सिंपल एंड in the horizontal direction only, so he jumps in the horizontal direction, ठीक है। बोट की वेलोसिटी कितनी है? 0 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें अपन को क्या लगाना है, लेट अस अंडरस्टैंड हाउ डू वी नो विच प्रिंसिपल और विच फॉर्मूला वी हैव टू अप्लाई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इसमें क्या कहीं टाइम का कोई मेंशन है पूरे प्रॉब्लम में, कितने टाइम में वो कांटेक्ट में आ रहा है या कौन सी फोर्स लग रही है, इज देयर एनी मेंशन अबाउट इट? नो सर, नहीं है। इसके अंदर सिर्फ आदमी की वेलोसिटी, बोट की वेलोसिटी, आदमी का मास, बोट का मास, और पूछा भी क्या गया है, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द बोट। दिस इज अ वेरी वेरी टिपिकल केस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एप्लीकेशन जहां पर भी हो रहा होगा वहीं पर आपसे जनरली वेलोसिटी पूछी जाएगी, या फिर ये कह लो कि जहां पर भी वेलोसिटी कितनी थी, इससे टकराया, इस पे कूदा, दोनों एक साथ मिल गए और मिलने के बाद उनकी वेलोसिटी कितनी हुई, इस तरह की प्रॉब्लम कहीं भी आपको पढ़ने में आ जाए, यू गेट अ वेरी स्ट्रॉन्ग हिंट कि यहां पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लग सकता है, ठीक है। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक ट्रिकी चीज है, उसमें आपको यह ध्यान रखना है कि एक ऑब्जेक्ट पे कभी भी ना लगाने की कोशिश करें। नाउ यू कंसिडर द मास ऑफ द मैन एंड मास ऑफ द बोट एज अ पार्ट ऑफ वन सिंगल सिस्टम, इसको एक सिस्टम मान ले। तो अब अगर आपने इन दोनों को एक सिस्टम मान लिया, तो आदमी और बोट अगर अलग अलग बैठे हैं तो इनकी मोमेंटम ऐड हो जाएगी सिस्टम का मोमेंटम बनाने के लिए, और अगर ये आदमी बोट पे कूद जाता है तो आदमी और बोट की कंबाइंड वेलोसिटी और कंबाइंड मास मिल करके फाइनल मोमेंटम बन जाएगी आपके सिस्टम की। बट द इंटरेक्शन एंड द फोर्स exerted by the man on the boat and the boat on the man, they will not matter because they are a part of the same system. एक ऐसी चीज हो जाएगी जैसे एक बंद डिब्बा है और इस डिब्बे में एक बॉल बस उछल कूद मचाना चालू कर देती है,
ये बॉल यहां गया, ये बॉल यहां टकराया, यहां टकराया, यहां टकराया, कंटिन्यूअसली ये बॉक्स और बॉल आपस में मोमेंटम का ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इसमें एनर्जी का लॉस तो होता है लेकिन मोमेंटम का लॉस नहीं होता। दिस इज व्हाट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्पेसिफिकली एम्फसाइजेस, कि एनर्जी का लॉस हो सकता है, एनर्जी कंजर्व्ड नहीं है इसमें, लेकिन मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगी। हर टकराव, हर टक्कर के बाद मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगी। इसीलिए जब आपने आदमी को और बोट को एक सिस्टम मान लिया है, तो व्हेन द मैन जंप्स ऑन द बोट, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। ये ट्रिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में। पीपल गेट कंफ्यूज्ड कि टक्कर होने पर अगर एनर्जी का लॉस हो रहा है तो मोमेंटम कंजर्व कैसे हो रही है, क्योंकि मोमेंटम के अंदर आप फोर्स नहीं कंसिडर कर रहे हैं, यू आर सिंपली एक्सचेंजिंग द वेलोसिटी और इम्पैक्ट। ठीक है, और जहां पर फोर्स लगती है वहीं पे वर्क डन होता है, और वर्क डन का ही लॉस होता है, या एक्सचेंज होने के कारण कहीं ट्रांसफर हो जाता है, कोई लॉस हो जाता है, हीट बन जाती है, कुछ बन जाता है। मोमेंटम के साथ में वो केस नहीं है, वो मोमेंटम हीट में कन्वर्ट नहीं हो रही है, आप ये समझ लो। मोमेंटम इज सिंपली प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास तो वैसे ही कंजर्व होती है, आदमी बोट पे कूदा तो आदमी का मास तो कम भी नहीं हुआ, ज्यादा भी नहीं हुआ, ना बोट के साथ कुछ हुआ, और नॉट लॉस्ट। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको इसको मन में रख लेना है। सो वी कैन अप्लाई, बड़ा ही सिंपल स्टेटमेंट है उसका, इस तरीके से आपको इसको मन में रख लेना है। सो वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, बड़ा ही सिंपल स्टेटमेंट है उसका। इट सिंपली सेज कि आदमी का मास m1 मान लो, बोट का मास m2 मान लो, आदमी की इनिशियल वेलोसिटी u1 मान लो, बोट की इनिशियल वेलोसिटी u2 मान लो, आदमी की फाइनल वेलोसिटी v1 मान लो, बोट की फाइनल वेलोसिटी v2 मान लो। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहती है, इन द इनिशियल स्टेट द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वाज m1 u1 plus m2 u2. In the final state, the momentum is m1 v1 plus m2 v2. बस इतनी सी बात कहती है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट। अगर रोटरी मोशन में आ जाए, अभी मैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहा हूं, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर द फॉर्मेट। इसी तरीके से अगर दो रोटरी ऑब्जेक्ट्स की बात की जाए, तो आप ये कह सकते हो कि इनिशियल मोमेंटम i1 ओमेगा 1 प्लस i2 ओमेगा 2, इस पे इनिशियल लगा देते हैं क्योंकि ओमेगा के लिए अपन के पास यू और वी जैसी चीज नहीं है। दिस विल बी इक्वल टू i1 ओमेगा 1 फाइनल प्लस i2 ओमेगा 2 फाइनल। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉर रोटेशन। तो अभी अपन रोटेशन की तो बात नहीं कर रहे, अभी अपन लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं। अपन को बस ये इक्वेशन लगानी, और हिंट क्या मिला अपन को, हाउ डू वी नो, हाउ डिड वी नो दैट दिस हैज टू बी अप्लाइड, बिकॉज देयर इज नो मेंशन ऑफ एनी फोर्स, there is no mention of any time, only velocity is being asked, and the given data constitutes of weights or masses of the objects involved, and there is an impact of masses, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे कूद रही है या उसका कांटेक्ट हो रहा है, तो इस तरह की सारी चीजें अपने को हिंट यही देती है कि इसमें सिंपल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है। सो एनीवे, let us gather up all the values for case number A. If the boat had no initial velocity, ठीक है, तो अब बताओ इसमें क्या क्या चीजें हैं। m1 पता करना है, m2 पता करना है, u1 u2 v1 v2 सारी चीजें पता करनी है। ठीक है, मास ऑफ मैन इज 800 न्यूटन, वेट दे रखा है आदमी का, तो m1 कितना हो गया, 800 by g. ठीक है। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मैन, 3 meter per second. 3 meter per second. second. What is the mass of boat, 3200 by g. 3200 divided by g, what is the initial velocity of boat, 0. it is 0.
इफ इट हैड नो इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि फर्स्ट केस में अपन अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें इनिशियल वेलोसिटी बोट की 0 है। राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं। आफ्टर द मैन हैज जंप्ड ऑन टू द बोट, ठीक है। नाउ वन थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, आदमी जब बोट के ऊपर कूद गया, once the man, now they are still inside the system, now once the man has landed on the boat, now both the boat and the man will have the same velocity v2, ठीक है। अब आदमी की अलग वेलोसिटी और बोट की अलग वेलोसिटी नहीं रहेगी। नाउ दे बोथ बिकम वन इंटीग्रल बॉडी एंड दे बोथ कंबाइंड टुगेदर मूव विद अ वेलोसिटी ऑफ v2 एज अ फाइनल वेलोसिटी। तो अपन अपनी जो इक्वेशन थी उसमें एक चेंज तो ये करेंगे कि भाई आदमी की फाइनल वेलोसिटी अलग से तो है नहीं, so we will take out v1 and simply put v2 there. Now m1 and m2 are combined together and now they have a common velocity, so we will tweak the right hand side like this. v2 is common, this becomes m1 plus m2. क्या इस इक्वेशन को अपने आप सॉल्व करके v2 निकाल सकते हैं क्या? इस कैलकुलेशन को जल्दी से कर लें क्या? Yes, sir. इसको v2 लिखा, m1 प्लस m2 करता हूं तो सीधे सीधे 800 बाई जी प्लस 3200 बाई जी। इसको जल्दी से सॉल्व करके बता दो चलो मेरे को। लेफ्ट हैंड की सारी क्वांटिटी सामने है आपके, राइट की सारी सामने है। व्हाट इज v2? 0.6 मीटर पर सेकंड। 0.6, दैट इज द करेक्ट आंसर। Yes, sir. 0.6. ठीक है। एंड यू हैव टू गिव द डायरेक्शन ऑल्सो, मूविंग अवे फ्रॉम द पियर, ठीक है। भाई बोट के ऊपर वो कूद तो गया, लेकिन अब आदमी जब इधर को कूदा तो बोट इधर को तो चलेगी नहीं, आदमी के इंपैक्ट से बोट उधर को ही जाएगी। सो द डायरेक्शन ऑफ v2 इज अवे फ्रॉम द पियर। नाउ लेट अस डिस्कस द सेकंड केस। अब इसी में आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है। द मैन इज स्टिल मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 3 meter per second, but now the boat is also moving. The boat has a velocity of 0.9 meter per second. अब इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? You have to decide a direction of velocity and put it as positive. क्योंकि एक वेलोसिटी तो राइट साइड को है, एक वेलोसिटी लेफ्ट साइड को है, तो अब इन दोनों को आप पॉजिटिव तो नहीं मान सकते, सीधी सी बात है, वेलोसिटी है, स्पीड नहीं है, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू इज, इन सच सिचुएशंस यू सिंपली स्टेट दैट वी आर टेकिंग द राइट साइड एज द पॉजिटिव साइड, ठीक है। तो अब ये वाली वेलोसिटी तो हो गई पॉजिटिव और ये वाली वेलोसिटी हो गई नेगेटिव। अब इस पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे लगेगा? ठीक है, वंस अगेन आई एम सिंपली राइटिंग मास ऑफ मैन एज m1, मास ऑफ बोट एज m2। इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू मेरे को बता दो आप। पहली तो m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2, दिस इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द एंटायर सिस्टम। दिस मस्ट बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। लेकिन फाइनल मोमेंटम आपको पता है कि आदमी बोट के ऊपर कूद चुका है, तो मास तो एक हो जाएगा m1 प्लस m2 और एक ही वेलोसिटी रहेगी v2, ठीक है, क्योंकि इसकी v1 और v2 अलग अलग वेलोसिटी नहीं है। नाउ द मैन हैज जंप्ड ऑन टू द बोट। नाउ इन दिस सिचुएशन u1 यानी कि आदमी की वेलोसिटी तो पॉजिटिव है, सो दिस विल बी 3 इंटू 800 अपॉन जी। m2 तो अभी भी वही है 3200 अपॉन जी, लेकिन u की को कैसे लोगे? 0.9 को कैसे लिखोगे? माइनस 0.9 लिखोगे। दिस इज हाउ यू हैव टू राइट इट। ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। इक्वल टू m1 प्लस m2 तो हो जाएगा आपका 800 प्लस 3200 अपॉन जी मल्टीप्लाइड बाय v2। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, अगर v2 की वैल्यू पॉजिटिव आती है तब तो आप लिखोगे
the net velocity of the man and boat is away from the pier. और अगर v2 की वैल्यू नेगेटिव आती है तब आप ये लिखोगे द कंबाइंड वेलोसिटी ऑफ मैन एंड बोट आर टूवर्ड्स द पियर. ठीक है, इस तरीके से आपको डिसीजन देना है. तो आपकी v2 की वैल्यू अब पॉजिटिव आए तब तो अवे फ्रॉम पियर है, नेगेटिव आए तो टूवर्ड्स द पियर है. दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट. एंड योर आंसर शुड बी दिस 0.12 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स द पियर. यानी कि आदमी जब बोट पे कूद जाता है तो बोट जो ऑलरेडी पियर की तरफ को चल रही थी वो पियर की तरफ को ही चलती रहती है विद अ रिड्यूस्ड वेलोसिटी. तो प्लीज ट्राई दिस आउट. ये चीज आपको समझ में आ गई क्या? कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया आपको? Yes, sir. ठीक है, सो वी विल क्लोज द लेक्चर हियर. और अभी भी आपके काफी सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं. क्वेश्चन नंबर 5 सेल्फ स्टडी है भाई, ये प्लीज नोट करें. ये आपको करवाया नहीं जाएगा, प्लीज डू इट ऑन योर ओन. अगर the chances are very less, but still if somebody is not able to do this question, अब 6th क्वेश्चन आपने कर लिया है तो 5th वाला क्वेश्चन आपसे सबसे होना चाहिए. ये तो बिल्कुल 9th 10th क्लास के बच्चों का क्वेश्चन है ये. यू ऑल शुड बी एबल टू डू इट. ठीक है, और नहीं भी हो पाता है तो इट्स अ सॉल्व प्रॉब्लम इन आरके बन सकता, जस्ट रेफर इट. और बाकी इसमें और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, तो इसीलिए मैं इन क्वेश्चंस को सेल्फ स्टडी के लिए पूरा तो नहीं दूंगा. देयर आर अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स जो कि आप लोग अब सेल्फ स्टडी में शायद नहीं कर पाए, तो इसलिए वी विल डिवोट वन मोर क्लास टू सॉल्व एज मेनी एज वी कैन सॉल्व. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास अपनी मंडे को आएगी, उसमें अपन आगे के क्वेश्चंस इसको कंटिन्यू करेंगे. नाउ आई विल टेक योर अटेंडेंस, प्लीज स्टे विथ मी.